So we discussed about the aromatic and the anti-aromatic behavior or character of the hydrocarbons, where we said that these structures, aromatic and anti-aromatic structure, the ring is cyclic. It consists of resonating structures or the resonance is there. Okay. In case of aromatic character, it obeys the Huckel's rule of aromaticity, that is 4n plus 2 pi electrons. यही पढ़ा था हमने. ओके. फॉर द एंटी एरोमेटिक बिहेवियर, किसी भी सब्सटेंस को आप एंटी एरोमेटिक कब कहोगे? सी द सब्सटेंस इज साइक्लिक, इट इज हैविंग कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं. ओके, but that is not going to follow Huckel rule, but instead of Huckel's rule it will be following what rule? 4n pi electrons rule. जैसे हमने एग्जांपल ली थी इसकी. Okay, so if you calculate the pi electrons, these are the 4. Here the n will be 1. So that is anti-aromatic. It is not obeying aromaticity rule, that is the Huckel's rule. Similarly, we take the example of this structure. Again 1, 2, 3, 4. 4 electrons are there. For this structure, again 1, 2 and 3, 4. 4 electrons are there. Okay, so I'll be giving you some more examples. You have to classify whether the structure will be aromatic, anti-aromatic or non-aromatic now. So non-aromatic कौन से होते हैं? जो cyclic नहीं है, alternate उसमें conjugated diene system नहीं है. Okay, and they don't follow any of these rules. Huckel rule नहीं follow करते हैं. Okay, so all these systems they will be anti-aromatic. चलिए, let's start with. Now you have to tell me whether the structures will be aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. चलो बेटा, इसका बताओ पहले. Firstly, the structure. It is aromatic, anti-aromatic or non-aromatic? जल्दी से बेटा, इतना टाइम नहीं तो मैंने यहीं पे छोड़ देना ये टॉपिक सर. बी फास्ट इन गिविंग योर आंसर्स. ये फर्स्ट है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है. So very good Raman. The first and the second one they are aromatic. इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर n जो है वो 1 बन रहा है. And here 1, 2, that means n is 0. What about these two structures? इसका बताओ और उसका बताओ. सॉरी, नाइट्रोजन वाले स्ट्रक्चर का. थर्ड इज एंटी एरोमेटिक. एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या है कि इट इज हैविंग 4n pi electrons. So 1, 2, 3, 4. Okay, so here n will be 1. Okay, about this structure. About the next structure. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का बताओ जल्दी से. Anyone? मिताली, रमन, अंजलि, बोलो बेटा. It is non-aromatic. Very good. It is only having 2 pi electrons. Okay, so that is forming its non-aromatic character. चलिए, moving to the next topic now. अच्छा, एक लास्ट ये बता दो एक. Okay, what about this structure? What about this structure?
एंड दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का बताओ पहले, दैट इज नॉन एरोमेटिक, वेरी गुड, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। दिस स्ट्रक्चर, हाँ जी, व्हाट अबाउट दिस स्ट्रक्चर? रमन, दैट इज नॉन एरोमेटिक। 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस स्ट्रक्चर में, दैट इज एंटी एरोमेटिक। ओके, दिस इज एंटी एरोमेटिक. So with this we have done the concept of aromaticity, non-aromaticity and anti-aromaticity. Now coming to the next is preparation. How we are going to produce these arene structure. Okay, so first method of preparation is by decarboxylation. Of sodium benzoate. Decarboxylation of sodium benzoate. Okay, so let's see. Sodium benzoate, so that will be the sodium benzoate. So this is COONA. Okay, this is sodium benzoate. इसमें हमने डालना है NaOH in the presence of calcium oxide. Okay, so you will be getting the benzene ring. और यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा बेटा. Here the whole structure it will be removed and you will be left with Na2CO3. देखो, दो सोडियम है, Na2COO, एक ये ऑक्सीजन. यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, देखो जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, देन दैट मीन्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस करके वहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है. ओके, व्हेन दैट सब्स्टिट्यूएंट इट इज एक्चुअली रिप्लेस्ड, तो हाइड्रोजन जो है वो वहां पर कार्बन के पास दोबारा आएगा. ठीक है, C6H6 हो जाता है ना. जब ये बना होगा स्ट्रक्चर तो इट विल बी लाइक दिस, C6H5COONA. ओके, तो हमने C6H6 दोबारा बनाना है, तो यानी कि एक हाइड्रोजन जो है वो अगेन वापस अपनी पोजीशन पे आएगा. ओके, सो दिस हाइड्रोजन इट विल मूव टू दिस कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग. ओके, सो दैट्स व्हाई Na2CO3 विल बी एलिमिनेटेड. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट आप पढ़ के ही आए हुए हो, यूजिंग द रेड हॉट आयरन. ओके, तो आपके पास एल्काइंस हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइंस. आयरन या कॉपर ट्यूब्स की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कर सकते हो. ठीक है, कॉपर ट्यूब्स की प्रेजेंस में कर लेते हैं. सो हाउ द एल्काइन इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बेंजीन रिंग. तो 6 कार्बन्स हैं, they will be aligned like this. ऐसे ही होगा. ठीक है, this bond will be shifted to this place, this bond will be shifted to this place and this bond will be shifted to this place. So ये वाले दोनों कार्बन्स जो हैं वो एक बॉन्ड के साथ लग जाएंगे. If I show the structure like this, ऐसे ही होगा. हाँ जी बेटा, ऐसे बनेगा. नाउ दीज बोथ कार्बन्स दे आर हैविंग डबल बॉन्ड. इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा. इन दोनों के बीच में अगेन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये वाला और ये वाला डबल बॉन्ड. ओके, सो इन दिस वे द बेंजीन रिंग इज फॉर्म्ड. तो जहां पर कोई बॉन्ड नहीं है वहां पर सिंगल बॉन्ड है, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा. ओके, देन बाय द फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक. तो आपने याद रखना है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल. यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल बेटा. बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH ग्रुप लग जाता है
सिंपल आप उसको अल्कोहल कहते हो। व्हेन यू आर नॉट हैविंग बेंजीन रिंग एंड OH फंक्शनैलिटी इज देयर, सो दैट इज अल्कोहल। तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप आ जाता है, दैट इज फिनोल। जिंक के साथ आप रिएक्शन करोगे इसकी, अगेन हियर द ऑक्सीजन विल बी रिमूव्ड। यहाँ से आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच रहेगा, तो ZnO विल बी एलिमिनेटेड इन दिस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज Wurtz-Fittig reaction. Okay, naming reaction is there. Next is Wurtz-Fittig reaction. So here we will be using the chlorobenzene. ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर Cl ग्रुप लगा हुआ है in the presence of Na, सोडियम and an alkyl halide. ठीक है, मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं या क्लोरोमीथेन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर द रिएक्शन विल बी प्रोसीड, यू विल बी गेटिंग अ बेंजीन रिंग। ये Cl ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। ओके, दिस Cl ग्रुप इट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर। 2 सोडियम है तो ये यहाँ से निकल जाएगा, यू विल बी गेटिंग, ये यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। ओके, तो Na बचा और ये Cl बचे हैं, सो इट विल बी 2 NaCl। ओके, तो मैंने आपको नेमिंग में कराया था इसका नाम, दैट इज कॉल्ड एज टोल्यूइन। क्या कहते हैं इसको? टोल्यूइन कहते हैं, राइट? हाँ जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक? एनी डाउट टू एनीवन? सो दीज आर सम ऑफ द प्रेपरेशन रिएक्शंस। तो आप और भी कर सकते हो जो आपने करनी है, राइट? तो हायर डेरिवेटिव्स जो हैं उनके लिए आप और भी रिएक्शंस जो हैं वो देख सकते हो, बट मैंने आपको सिंपल रिएक्शंस करवाई हैं जिसमें हम सिंपल डेरिवेटिव्स बना रहे हैं। फर्दर यू कैन प्रिपेयर दिस फ्रॉम द सैचुरेटेड सिस्टम ऑल्सो। इफ यू रिमेंबर, we did one reaction where we convert the hexane into benzene. याद है आपको? हेक्सेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। So this is the structure of hexane. Okay. So hexane को मैंने हीट करना है यहाँ पर। इस स्ट्रक्चर को मैं खोल के ऐसे भी लिख सकती हूँ। सी, मैं इस चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसको लिखूंगी CH3, CH2, 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 then CH2. Okay, so this structure can be shown like this. तो इसमें से मैंने ये 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देने हैं सबसे पहले इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। ओके, तो डिहाइड्रोजनेशन का मेथड यहाँ पर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। हेयर द 2 हाइड्रोजन विल बी रिमूव, एक ये हाइड्रोजन चला जाएगा और एक ये हाइड्रोजन, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, सो इन दिस वे फिर आपने क्या करना है, अगेन आपने 6 के 6 हाइड्रोजन फिर से रिमूव कर देने हैं। 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 हाइड्रोजन विल बी रिमूव। तो यहाँ से और यहाँ से जब जाएगा तो दे विल बी हैविंग डबल बॉन्ड, यहाँ से और यहाँ से जाएगा, अगेन दे विल बी हैविंग डबल बॉन्ड, यहाँ से और यहाँ से जाएगा तो डबल बॉन्ड। तो आप ये पहले भी पढ़ के आए हो। ओके, तो एलिमिनेशन हो रही है यहाँ पे, एंड एलिमिनेशन के प्रोसेस में जो बॉन्ड है वो सिंगल से किस में चला जाता है? डबल में। पढ़ा हुआ है ना आपने हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में ये सारा। ओके, नाउ सपोज इफ आई एम हैविंग हेप्टेन हेयर, अब सपोज मेरे पास हेप्टेन होता है हेक्सेन की जगह। ओके, 7 मेंबर है मेरे पास, तो स्टिल हमने क्या करना था, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करवानी है। ओके, इन दोनों के बीच में मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन करवानी थी, एंड जब आप फाइनल देखोगे तो ये CH3 ग्रुप इट विल बी प्लेस हेयर ऑन दिस कार्बन। तो हेप्टेन के केस में मैं इसको साइड सब्स्टिट्यूएंट में लूंगी, एंड 6 मेंबर की चेन जो है वो आपने फॉर्म कर देनी है।
the chain of 6 membered it will be formed, and here the CH3 group will be taken as the side substituent group. ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोल्यूइन बन जाएगा. फिर कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो दे आर द कलरलेस ऑयली लिक्विड्स होते हैं जो बेंजीन के रिंग्स होते हैं. ठीक है, बेंजीन एंड इट्स होमोलॉगस ऑल टिल 8 दे आर ऑयली लिक्विड्स. ओके, एंड अरीन्स दे आर बेसिकली इमिसिबल इन वाटर, पानी में नहीं डिसॉल्व करती है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं. अगेन द पॉइंट इज लाइक डिसॉल्व लाइक, तो जो जैसा है वो अपने अंदर वैसी ही चीजों को क्या करेगा, डिसॉल्व करवाएगा. क्योंकि इसमें पोलर कैरेक्टर नहीं है, आपने देखा ना पोलैरिटी नहीं बन रही है कहीं पे. ओके, सो दैट्स व्हाई इट डजंट डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट्स. अगेन इफ यू टॉक अबाउट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ती जाएंगी. Okay, so van der Waals forces होती हैं, you know, they are the weakest forces, right? So they will be continue to increase with the molecular size. Now coming to the next thing, very very important, chemical properties. Chemical properties of arenes or benzene ring. तो इनके हमने रिएक्शंस भी डिस्कस करनी है एंड वी हैव टू डिस्कस देयर मैकेनिज्म्स आल्सो. ओके, तो मैकेनिज्म्स भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. सबसे पहले देख लेते हैं कि बेंजीन जो है वो केमिकली कैसे रिएक्ट करती है. एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि यहाँ पर जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है. इट इज प्रेजेंट ऑन ऑल द 6 कार्बन एटम्स ड्यू टू delocalization of these pi electrons. Okay, this make the benzene ring less reactive. क्योंकि चार्ज जो है वो सारा delocalized हुआ है, it is spread on all the 6 कार्बन एटम्स, so that's why it make the benzene ring less reactive. ठीक है, तो इसीलिए जो बेंजीन रिंग है वो डबल या डबल कैरेक्टर्स जो हैं अनसैचुरेटेड का डबल बॉन्डेड की तरह वो बिहेव नहीं करते हैं. सो ड्यू टू विच दे डोंट अंडरगो द एडिशन रिएक्शंस, नहीं अंडरगो करते हैं, रादर दे बिहेव एज अ सैचुरेटेड कंपाउंड्स. ओके, ये जो है ये सैचुरेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं जिसमें दे सिंपली अंडरगो द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वेयर वन ग्रुप गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय द सेकंड ग्रुप. ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि ये जो है दैट इज नॉट एक्चुअली एक्टिव फॉर द एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज ओनली you can say reactive towards the substitution reaction. आप इसमें substitute कर सकते हो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी और ग्रुप के साथ substitute कर सकते हो आप इसीलिए. Okay, so let's do the substitution reactions now. So the very first substitution is halogenation, where we are going to substitute the hydrogen with the halogens. ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनके साथ हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो वेरी सिंपल मेथड, बेंजीन है उसमें जब आप क्लोरीन ऐड करते हो Cl2. ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट दीज रिएक्शंस दे नीड सम ऑफ द कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट भी आपने कौन सा लेना है, यूरिक एसिड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दीज कैटलिस्ट, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको करवाऊंगी जब हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा, यहाँ से एक क्लोरीन है, सो यू विल बी गेटिंग HCl and this one chlorine it will be attached here. Okay, so this is how the halogenation reaction it proceeds. Same reaction you can do for the bromo one. Okay, same reaction you can do with the bromo one. With the iodination,
अगर मैं आयोडीनेशन के साथ इसकी बात करूं तो यू नो, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में एल्केन्स के चैप्टर में पढ़ा था कि जो आयोडीनेशन रिएक्शन है दैट इज रिवर्सिबल, इफ यू रिमेम्बर, याद है, जिसमें हम कहते हैं कि जो आयोडीनेशन रिएक्शन है दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर. So if it is reversible in nature, we need some of the oxidizing agents. क्योंकि आप पढ़ के आए हो कि आयोडीन, ब्रोमीन, ओके, दे आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये दोबारा इसके साथ मिक्स होके इसने दोबारा ये दे देना है. ओके, सो वी नीड सम ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दैट कैन बी HiO3. ओके, तो जो आपका HI फॉर्म हुआ है इट विल रिएक्ट विद HiO3 इन ऑर्डर टू लिबरेट वाटर एंड आयोडीन. सो दिस प्रिवेंट्स द रिएक्शन टू मूव ऑन द रिएक्टेंट साइड. ओके, और आप क्या ले सकते हो अगर आपने HiO3 नहीं लेना है, यू कैन टेक HNO3. ओके, यू कैन टेक HiO3 that is iodic acid and HNO3 that is nitric acid. They both are the strong oxidizing agents. जो HI को किस में चेंज कर देंगे, आयोडीन में, I2 में. ओके, सिमिलरली द नेक्स्ट रिएक्शन, इज नाइट्रेशन. तो मैं आपको दो करवा के बता देती हूँ कि हमने क्या क्या चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है. मैकेनिज्म विल बी कॉमन फॉर ऑल दीज. तो मैं आपको एक मैकेनिज्म करवाऊंगी, वहां पर आपने इलेक्ट्रोफाइल चेंज करते जाना है बस. फॉर द नाइट्रेशन रिएक्शन यू नीड नाइट्रिक एसिड. नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है ये. ओके, एंड दिस नाइट्रेटिंग मिक्सचर इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. डू रिमेंबर, sulfuric acid is very very important in this nitric reaction. Okay, nitrating reaction, nitrating mixture में जो आपका sulfuric acid है that plays a very very important role. So what will happen here, you will be getting NO2 attached to it plus H2. Okay, similarly for the sulfonation, के लिए क्या होता है, I'll be adding here H2SO4, sulfuric acid डालूंगी मैं इसमें. Okay, in the presence of SO3. Again the catalyst plays a very very important role here बेटा. ठीक है, हम इसको हीट करेंगे and here there will be substitution of SO3H group. There will be substitution of SO3H group. Okay, now coming to their mechanism, as I already told you कि मैं एक mechanism आपको करवाऊंगी, जो बाकी mechanism है वो सारे same follow होंगे. Okay, so let's do the substitution reaction के mechanism. मोनो substitution है, यानी कि हम सिंगल सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर. So this I will be showing you the general mechanism. ओके, तो स्पेसिफिक में जैसे आपने हैलोजन ग्रुप रिप्लेस करवाना है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में NO2 है, तो वहां पर हम इलेक्ट्रोफाइल की जगह वो सारे ऐड कर देंगे. जर्नल मैकेनिज्म में सबसे पहले द मेन थिंग इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. ओके, since in the case of the benzene ring you see they are having pi electron density, तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा ही नहीं, that is very very obvious thing. ऑलरेडी उनके पास pi electron density है, तो न्यूक्लियोफाइल will not attack. तो कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल. so their substitution reactions will be of electrophilic nature. okay, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना पड़ेगा.
Let's take any of the compound here which consists of electrophile and nucleophile both. So what will happen? ये nucleophile ने electrons अपनी तरफ कर लेने हैं. You will be getting a nucleophile and an electrophile. Okay, this is the first step where we are generating the electrophile. Now this electrophile, इसके ऊपर positive charge है, तो ring के ऊपर negative charge है. That means it is having pi electrons. So this electrophile, it is going to attack on the benzene ring. So the second method or the second rule here, step is that here it will be the attack on the electrophile, attack of the electrophile on the benzene ring. तो ध्यान से देखिए बेटा. As I already told you, efficiency goes towards deficiency. जिसके पास ज्यादा है वही देगा. Okay. Now this is a slow step where we will be making a number of resonating structures here. Okay. So when this carbon, it is actually attacking this electrophile, तो क्या होगा? Here the hydrogen and the electrophile, they will get attached on this carbon. अब ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में था, इसको मिल गया, तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, पॉजिटिव चार्ज. बाकी दोनों बॉन्ड्स एज इट इज. नाउ सी, these are the pi electrons. Again efficiency goes towards deficiency. अब इस वाले कार्बन ने, अब ये बॉन्ड जो था वो इसके बीच में और इसके बीच में था. When the electron it transfers, तो इसके बीच में और इसके बीच में ट्रांसफर होगा, यानी कि अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. The structure will be like this. हाँ जी, ठीक है. Now again this third bond, again it will be shifted here. फिर से सेम चीज करेंगे. देखो ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में था, जब ये बॉन्ड ट्रांसफर हुआ तो इसके बीच में तो बॉन्ड बन जाएगा, बट ये वाला जो है इट विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा. So in this way we get a number of resonating structures. तो अगर मैंने इनका हाइब्रिड शो करना है, so the hybrid will be like this, where the benzene ring will be having the positive charge. ठीक है, जहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. सो नथिंग, मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया है बेंजीन रिंग के ऊपर. ओके, द लास्ट मेथड और द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो H पॉजिटिव को क्या करना है? हमने रिमूव करना है. So removal of H positive is there. So see, you can take any of this structure. आप इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हो, और simply you can take the hybrid that is showing the possibilities of all these structures. Okay? तो अगर मैं suppose मैं इनमें से कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लेती हूँ. If I take this structure, if I take this structure, कोई भी ले सकते हैं हम. Okay, so this proton it will be released and this bond will be shifted here. प्रोटॉन को हमने बाहर निकाल देना है H पॉजिटिव को. ओके, एंड ये जो हाइड्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड है उसको हमने शिफ्ट कर देना है. Again the reaction will proceed in the presence of the nucleophile that you have generated in the first step. ठीक है, this step is fast. तो यानी कि इस स्टेप का कोई रोल नहीं है, मेन हमारा ये सेकेंड स्टेप होता है which is the slow step. So after this the electrophile will be attached here and the nucleophile will get attached with the hydrogen. Okay, तो ये हमारा जनरल रिएक्शन है. कल मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल चेंज करूंगी, बाकी सेकंड स्टेप आपका सेम रहेगा. जहां जहां ई है आपने वहां पर अपना इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देना है. सेम जहां पर आपका ई और न्यूक्लियोफाइल है वो लगाने हैं, बाकी सारी की सारा मैकेनिज्म सेम. वी जस्ट हैव टू
चेंज द फर्स्ट स्टेप जहां पर हम जनरेशन का कर रहे हैं, और जहां पर ई है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल लगा देना है, जहां पर न्यूक्लियोफाइल है वहां पर स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल लगा देना। ओके, रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो।